The question is, in the given figure, E and F are respectively the midpoints of non-parallel sides of a trapezium ABCD, और आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज अगर आपने प्रूव कर दिया तो दूसरी चीज तो बहुत ही आसान है, that is just a standard property that we have already discussed. But the main problem is, the main panga is this, how to prove, first thing, how to prove point number one। पहले point को आपको कैसे prove करना है, that is the main panga here। तो पहले पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, सी I'll just discuss the question, because last time we already had lot of discussion on this, we were trying to discuss the question, but since the time was left and since the time was over, therefore we could not discuss this question at that time in that class. So I'll just start from where we had left. Now if I talk about these two triangles, which two triangles, sir? Triangle EPG, and triangle EBA. So what I will found, that angle 1 will be equal to angle 2. Angle 1 will be equal to angle 2, पहली चीज। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे मिलेगी वो ये मिलेगी, ये वाला angle 3 will be equal to angle 4. क्यों सर? Why angle 3 will be equal to angle 4? Because these two angles are vertically opposite angles. And sir, why angle 1 will be equal to angle 2? Because sir, these two angles will be alternate interior angles. तो एक alternate interior angle हो गया, एक vertically opposite angle हो गया, और my dear friend एक और चीज हमें यहाँ पे मिलने वाली है, वो ये मिलने वाला है, AE is equal to BE. So by angle side property, by AAS, I can say that the two triangles are angle side property, I can say that the two triangles are congruent. कौन से दो triangles congruent होगा sir? By angle side property, I can say that these two triangles are congruent. अब ये दोनों triangles अगर मेरे congruent हो गए, the first thing that I will have, my first conclusion will be AE is equal to ED. ठीक है? That means E is the midpoint of AD. Similarly, अब यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि E is the midpoint of E. E is the midpoint. अब देखो इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो a line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. By the application of midpoint theorem, I can say that E जो है वो AD का midpoint है, F जो है वो BC का midpoint है. Therefore, by the application of midpoint theorem, I can say that EF will be parallel to CD. EF जो है वो CD के parallel है. Similarly, by applying the same, similarly, I can also say that अब हमें ये भी क्या हुआ है कि AB is parallel to CD या फिर DC. Here the direction won't matter, but AB is parallel to DC. यहाँ पे DC लिख दो, and here EF will be parallel to BC. EF is parallel to BC, and similarly I can also say that AB is parallel to BC. So from first and second, I will say that EF is parallel to AB. यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि EF is parallel to AB. अब EF is parallel to AB हो गया, ये पार्ट फर्स्ट था. पार्ट सेकंड जो था वो तो ट्रेपेजियम का स्टैंडर्ड रिजल्ट है. कैसे प्रूव करेंगे सर? A से C को ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को O मान लो, तो EO will be equal to half of DC, FO will be equal to half of BA, दोनों को ऐड कर दो, EF will be equal to half of AB plus DC.
क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इस क्वेश्चन में कुछ बचा है नहीं। हाँ बोलिए। सर हमने वो आपने ये क्यों लिखा कि AE इज इक्वल्स टू डी, हमें लिखना चाहिए था PE इज इक्वल्स टू BE, ऐसा लिखना चाहिए था, क्योंकि वो तो पहले से दिया हुआ ही है। क्या नहीं सर बेटा ये जो देखो लिखा कि यहाँ। AE इज इक्वल्स टू DE, हम्म। सर वो क्यों नहीं लिखा, वो मैंने तो बस दिया ही था। वो दिया ही था, मैंने बस इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। आप नहीं करते तो भी आपका काम, आप नहीं करते तो भी आपका काम बन जाता, डायरेक्टली क्वेश्चन। सर नहीं आप सर, नहीं करते। इसमें बोलना चाहिए था कि हम्म, PE इज इक्वल्स टू BE, इसलिए तो हमने उसको कॉन्ग्रुएंट किया, क्योंकि वो ट्रायंगल की थर्ड साइड वो हाँ है ना। पीई इज, P। हाँ ठीक है ठीक है, पीई इज इक्वल टू बीई, दैट वाज माय मिस्टेक, यस दैट वाज माय मिस्टेक, या आई जस्ट गॉट कैरिड अवे समवेयर। यहाँ पे होगा पीई इज इक्वल टू, आई सर जस्ट गॉट मुझे कैरिड ये अवे समवेयर। हाँ बोलो बोलो। सर मुझे कि सर आपने EF और DC को मतलब कॉन्ग्रुएंसी तो समझ आ गई, लेकिन सर EF और DC पैरेलल कैसे हो गए? बेटा मिड बाय पॉइंट बाय थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम और क्या सर है वो दोस्त, बताओ जरा, व्हाट इज सर मिड मिड पॉइंट पॉइंट थ्योरम थ्योरम? बताओ बताओ। सर कि अगर दो जो साइड है ट्रायंगल की, अगर सर वो दोनों का जो मिड पॉइंट है उनको जोड़ दे तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, और वो सर वो जो उन दोनों लेंथ साइड, होगा साइड का। हम्म, और उसकी जो लेंथ होगी वो हाफ होगी। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, आई जस्ट जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट मिस्टेक। इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। अगर तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है PE इज इक्वल टू EB, ठीक है, ये हमने अभी अभी हम लोगों ने इस चीज को प्रूव किया है। और एक और चीज जो मेरे को दी हुई है, वो दी हुई है BF इज इक्वल टू FC। फाइन, ये दो चीजें मेरे को यहाँ पे दी हुई है। दैट मीन्स E is the midpoint of EB and F is the midpoint of BC। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो रेखा है, ये रेखा by the application of midpoint theorem, this rekha EF, this rekha FE will be parallel to this rekha PC. FE will be parallel to PC, or I can say FE will be parallel to DC. But I also know that AB is parallel to DC. तो अब यहां से इन दोनों चीजों से I can say that FE will be parallel to AB. FE और EF will be parallel to AB। ठीक है, इस तरीके से I can say this। करना क्या था, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। इन दोनों ट्राइंगल्स को जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि PE will be equal to FB। PE will be equal to FB। यहाँ पे एक मिस्टेक है, दिस विल बी FB। PE will be equal to FB। जब इससे आपको ये पता, सॉरी PE will be equal to EB। जब आपको ये पता चला कि PE is equal to EB, this point is E, I guess E है कि F? ई है, E है, ठीक। जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था बेटा, तो आपको ये पता चला कि PE is equal to EB। That means in this triangle, what you will say that E is the midpoint of EB, and similarly you will say that F is the midpoint of BC, So by application of midpoint theorem, you can say that EF will be parallel to BC. EF will be parallel to BC, but AB is also parallel to BC. So from these two relations, you will say that EF will be parallel to AB. That's it, simple. ठीक है, this is how you are supposed to। हाँ बोलिए।
सर ये आपने वो इसके बाद वाला जो पार्ट था ना, सेकंड पार्ट, उसमें आपने AC को जॉइंट किया, फिर वो सर वो समझ में नहीं आया सर, वो AC का हाफ क्यों, मतलब वो क्या किया आपने? कौन सा सर बेटा? वो सर वो AC को अच्छा, जॉइंट किया। सेकंड पार्ट में, हाँ हाँ सर। सेकंड पार्ट, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ क्या सर, बोल आप रहे एक बेटा बार तानिया? हाँ सर, फर्स्ट पार्ट रिपीट कर सकते, थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ गया। चलो देख लो एक बार फिर से। इस फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, so what you will find that PE will be equal to EB. That means E is the midpoint of PB. Similarly, you also know that F is the midpoint of BC. So by the application of midpoint theorem, you can say that EF is parallel to BC. This EF is parallel to BC. Similarly, you also know that AB is parallel to BC. From first and second, you can say AB will be parallel to EF. From first and second, you can say AB will be parallel to EF. This is how you are supposed to solve this question. Yes, you can prove the congruency by any other. How you will prove? Yes, you can. How you will prove it by SAS congruency criteria? Past, can you please tell me? Can you please enlighten us? Sir, angle AEB will be equal to angle PED, vertically opposite ठीक है। angles. Sir, उसके बाद फिर angle BAE is equal to angle EDP, alternate angles. और and sir, AE is equal to AD. तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया? Sorry sir, it will be AA sir. Good. Confidence is nice, but overconfidence is sometimes problematic. चलो, अब बात आती है how will you prove the second part? Second part को प्रूव करने के लिए क्या करो, आप इन दोनों को ज्वाइन करो, AC को ज्वाइन कर दो, that it meets EF at point O. So by the application of midpoint theorem, क्योंकि ये हमें पता है कि ये इसके पैरेलल है, I know that EO is parallel to DC. I also know that E is the midpoint of AD. So by application of midpoint theorem, I will say that EO will be equal to half of BC. Similarly, by the application of midpoint theorem, I will also say FO will be equal to half of AB. दोनों को ऐड कर दो, EO plus FO is nothing but EF. EF will be equal to half of AB plus BC. ये तो प्रूफ करना सही है, तो गया। सर पर हमें ये पता है कि AC का हाफ O है, मतलब AC का हाफ O है, वो पता है? तो बेटा मिडपॉइंट थ्योरम ये कहता है a line joining the midpoint of one side of a triangle and parallel to the third side meets the other side at its midpoint and its length is equal to half of the third side. Half of other side. हमें ये नहीं पता है. I have used the midpoint theorem. दो चीजें हैं, एक मिडपॉइंट थ्योरम है, एक मिडपॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है. बहुत कंफ्यूजिंग, बार बार देखोगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी. आपको पता भी नहीं चलेगा, हो सकता है आप कुछ गलत है. इस थ्योरम को सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते 3 4 5 10 बार 100 बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, नहीं देखोगे चलो नेक्स्ट.
Now this question. The time allotted for this question is 2 minutes past. Try. It's one of my favorite batches in my whole history of teaching. That is why I love it. I will remember you guys for long. देखो बेटा, मैंने बोला था कि नहीं बोला था मुझे भी नहीं याद है, लेकिन मीडियन जो होता है, मैं कुछ भी कर लूं, मैं कर लूं कंफ्यूज, कोई और टीचर आके कर दे कंफ्यूज, कुछ भी कर ले. मीडियन इज डिफाइंड एज द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम opposite vertex that divides the opposite side, that bisects the opposite side. अगर यहाँ पे मीडियन की बात आ गई तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए मेरे दोस्त कि AE is equal to EC and which will be equal to half of EC. ये पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, because E is the midpoint of AC. Why E is the midpoint of AC? Because BE is a PQ. ठीक है. दूसरी चीज, by application of, since I have drawn DF parallel to BE, तो उस केस में मेरे को ये पता चलेगा by the application of midpoint theorem, what I will get to know from here is that this DF, this F will be the midpoint of, F is the midpoint of EC. So I can say FC is equal to half of EC. Further, EC is equal to half of AC. Therefore, FC will be equal to 1/4 of EC. That's it. क्वेश्चन खत्म. पैसा हजम, मार्क्स मिलकर आगे बढ़ो. बस यही करना था इस क्वेश्चन में. मैंने कोई कंफ्यूज करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ यू वाज कंफ्यूज. अगली बार से कुछ और करेंगे. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू इन दिस क्वेश्चन. कि एक बार आपको जब मिला DF, जब आपने देखा DF is parallel to EC, VE, एक आपके किसी दोस्त ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर F का तो पोजीशन ही नहीं पता है कि F कहाँ है. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. लेकिन बेटा अब ध्यान से सुनो, अगर F की पोजीशन आपको नहीं पता है कि where F will lie, but you know one thing that VE is parallel to DF, तो F यहाँ तो लाई कर नहीं सकता, F यहाँ तो लाई कर नहीं सकता, F इस लाइन को तो लाई कर नहीं सकता. तो F will lie somewhere between E and C. F will lie somewhere between E and C. In the original question that was given in your book, फिगर दिया हुआ था, लेकिन मैंने डेस्परेटली फिगर हटा दिया. मैंने डेस्परेटली फिगर हटा दिया था. मैं चाहता था कि बेटा योर बेटा बहुत ज्यादा इको आ रहा है. कैन यू प्लीज टाइप व्हाट यू वांट टू से. बहुत ज्यादा इको आ रहा था पीछे से, तो आई वाज अनेबल टू हियर यू. सो दैट इज व्हाई आई वांटेड यू टू एनालाइज ये एफ पॉइंट कहां है. बस इसलिए मैंने फिगर की, इस क्वेश्चन की फिगर को छुपा. ठीक है. इस क्वेश्चन को अपन नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं. मिड पॉइंट थ्योरम के एप्लीकेशन से भी कैन सॉल्व. डीएफ एक्सटीरियर में भी तो हो सकता है, DF एक्सटीरियर में भी तो हो सकता है. दैट वुड फाई ऑन द ट्रायंगल दैट वुड lie on evident in describing that F would lie. DF एक्सटीरियर में भी तो हो सकता है. कहां से, कैसे एक्सटीरियर में हो सकता है? देखिए जरा, एक्सटीरियर में कहां पे होगा बेटा? हाउ विल इट बी ऑन एक्सटीरियर? आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड करने की बात कर रहे हो. Then can you say that it will be parallel? Tell me. My dear friend, exterior में कहाँ lie करेगा?
सर ओके, उसका मतलब वो होगा कि वो डीएफ की जगह आपने इस तरफ लिए, उसकी जगह उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड ले लो सर, तो भी वो लाइन पैरेलल अपोजिट रहेगी, ऐसा साइड बोल रहे किधर? हो? अपोजिट साइड किधर बताओ ना मेरे। लाइन है सर डीएफ से एक और एक लाइन, ऐसा भी जो लाइन बनी उस तरफ की सर बात कर रहे हो? आपने जो डीएफ लाइन बनाई है ना सर, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। पीछे की तरफ इधर कर दिया एक्सटेंड पे। हाँ सर, हाँ बस सर वो वैसे बोल रहा है कि हाँ, एफ वही। पॉइंट हम इसमें कहीं पे भी तो ले सकते हैं ऐसा। तो बेटा फिर बेटा Angle. बेटा फिर अगर आप ऐसे करोगे तो फिर यहाँ पे सीएफ कहाँ से आएगा दोस्त? यहाँ पे सीएफ भी तो चाहिए भाई। अगर तो फिर सीएफ हमारा चाहिए एसी मिस हो जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको सीएफ चाहिए इन दैट केस एफ शुड लाई ऑन एसी ना। एफ शुड लाई ऑन एसी। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? If the question is asking about CF, in that case F should lie on AC, and if F should lie on AC, तो इधर नहीं एक्सटेंड करेंगे, अच्छा इधर ही एक्सटेंड करेंगे। It's not necessary, but What's Sir, not like- necessary? Not Sir, what? like- Okay, fine. Okay, fine. You do one thing. You try by the way you are suggesting. You try by the way you are suggesting. You extend this AB. You extend this DF. You extend this D no, like sir, this. this is not my suggestion. Ah. Sir, I am someone else means I will not send this message. No. I'm नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. Those who are saying that it can be like this, just try once. Try once and tell me the difficulty that you are getting. Tell me the difficulty you are getting. I'll wait for your answer. आएगा तो प्रूव कैसे करेंगे? CF ऐसे आ सकता है बेटा कि वो C को F से ज्वाइन कर देगा. वो C को F से ज्वाइन कर देगा. Then in that case it will be too long and perhaps you won't get the answer. तो भाई जो चीजें दी हुई है उसको सिंपल सोचो ना. दुनिया गोल है तो उसको गोल मान के चलो. कुछ चीजें नॉर्मली व्हाट आई विल थिंक दैट आई हैव टोल्ड यू. आप इसको एक्सटेंड करो, पीछे एक्सटेंड करो, कहीं और लेके जाओ. दैट इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट. दैट इज व्हाट आई अगेन आई विल से दैट वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. Your batch makes me to think. It makes me to think. कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. मैंने ये क्वेश्चन कई बैचेस में करवाया, किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा. वेरी गुड क्वेश्चन. प्लीज कीप ऑन आस्किंग. हाँ बोलिए. मुझे ये समझ नहीं है सर, एफ पॉइंट कैसे हो गया ईसी का? क्या सर एफ मिड पॉइंट कैसे हो गया ईसी का? बेटा मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? Answer my question. What is midpoint theorem? कि सर अगर ट्रायंगल की दो साइड की जो मिड पॉइंट होते हैं उससे से कोई लाइन पास कर. No. See now you are testing my questions. We have done some 5, 6, 7 questions on midpoint theorem, and then when I'm asking you midpoint theorem, आप अजीबोगरीब definition बता. So I won't answer your question why F will be the midpoint of this. I won't answer this question. आपको इस क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले आप जब तक मुझे मिड पॉइंट थ्योरम नहीं बताओगे तब तक मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं. आपके पास पूरे 30 मिनट है. मिड पॉइंट थ्योरम मुझे बताइए, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा. ABCD आपको पता नहीं और आप चल रहे हैं हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ने. That is not possible. That is not possible. I'm leaving this question because इस क्वेश्चन में वही है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए थे. रॉम्बस के केस में किया था जहां पे अपन ने रेक्टेंगल प्रूफ किया था. पैरेललोग्राम के केस में किया था, वहां पे भी अपन ने रेक्टेंगल प्रूफ किया था. एंड both the questions were based upon the application of midpoint theorem. So I'm leaving this question for you guys to do. तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लेना. नहीं कर पाओगे मुझे बताना. I will solve this question. But now the next thing that we are going to discuss today is another set of some very important questions that I have lifted from the last year's questions जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं.
और आपके एग्जाम में मतलब एनटीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आई विल आस्क, आई विल टेक दोज क्वेश्चन, और these are some of the good questions that we should practice. So here we are studying. चलो क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यही है ना? हाँ भाई, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. द टाइम allotted for this question is 30 seconds. Fast. साइज 2 का है ना शायद. हाँ, ये क्वेश्चन शायद नहीं, ये क्वेश्चन सही में एक्सरसाइज 2 का है. और इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. बहुत अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है. इस पैरेललोग्राम में मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है. अब x और y की मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा? पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि 10x, that means 10x will, अरे यार क्या है, that means this 10x, वेट करो यार, ये कुछ समटाइम्स इसकी सेंसिटिविटी कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है. This 10x will be equal to 60, or it will give me x is equal to 6, and 4y will be equal to 28. That will give me y equal to 7. That's it. खत्म. क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द आंसर. आगे बढ़ो, क्वेश्चन खत्म, मार्क्स मिल गए, आगे बढ़ो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. चलो अगला क्वेश्चन करो. When the midpoint of two adjacent sides of a triangle are joined, the line joining the line segment thus formed is parallel to the third side and is half of the third side. ठीक है. चलो now let me come back to the theorem. Let me come back to the question that doubt that your friend was asking. Okay, just wait for another 1 minute, right? बेटा, why I got angry with you? Because आपसे जब मैंने पूछा what is midpoint theorem, so you were unable to tell. ठीक है? That is why I got angry with you. Please don't take it otherwise, because I have seen potential in you guys. That is why I get. अब देखो, यहाँ पे आपने ये पूछा था कि सर I am unable to understand why f is the midpoint of EC. अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को. D is the midpoint of BC, ये तो आपको पता है. Why D is the midpoint of BC? Because D is the median, ये आपको पता है. Similarly, DF is parallel to DE, ये भी आपको पता है. क्यों पता है सर? क्योंकि ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो a line joining midpoint of one side of a triangle. अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, in triangle DCE, a line joining midpoint of one side of a triangle and parallel to the third side meets the another side at its midpoint. एक लाइन, कोई भी ऐसी रेखा जो एक साइड के मिड पॉइंट से होते हुए गुजरती है और थर्ड साइड के पैरेलल होती है, वो रेखा दूसरी वाली साइड को उसके मिड पॉइंट पे मीट करती है. सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम आई कैन से f is the midpoint of EC. F is the midpoint of EC. I hope I have cleared your doubt. I have cleared your doubt. ठीक, very good. That is why I said to tell me midpoint theorem, then only I will explain you your doubt, because that was necessary. अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता तो आपको ये चीज नहीं समझ. कभी कभी कड़वी दवाइयां जरूरी होती है बीमारी को. सर 55 सर 55 डिग्री 55 डिग्री ऑप्शन बी. सर ऑप्शन बी 55 डिग्री. तुम लोग लड़की हो, सर ऑप्शन बी. तुम लोग लड़की हो सारे के सारे, तुम लोग सारे के सारे लड़की हो क्या? मैंने क्या बोला? आई विल बी आस्किंग ओनली, आई विल बी एंटरटेनिंग ओनली द गर्ल्स. आई डोंट वांट टू लिसन योर वॉइस. तो चुपचाप बैठ जाओ सारे के सारे. हाँ बच्चियों, आंसर दो.
बोल के दो या तो टाइप करके दो, जैसे देना है तो जल्दी दो। So option B 55. सर ऑप्शन बी 55 डिग्री। उसका सुन के मत दो, गलत बोल रहे वो। Shrey and Parth both are telling you the wrong answer. Don't do नो that. सर इट विल बी No, 55 it's- ओनली। it's 55 degree. अजीब देश है भाई, सारे के सारे गलत बात करते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा आंसर। ABCD इज ए रॉम्बस। जब मैंने ABCD देखा कि ABCD इज ए रॉम्बस, मुझे रॉम्बस नहीं समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये बात हमने पढ़ी हुई है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं या नहीं होते हैं, बताओ। सर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते सर हैं। अपोजिट एंगल्स Yes, इक्वल हो, equal- सप्लीमेंट्री Opposite एडजेसेंट equal एंगल होता है, मतलब adjacent होता है ना, हाँ। अपोजिट एंगल सर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री ऑन द होते सेम साइड ऑफ जो ट्रांसवर्सल है वो सप्लीमेंटरी होगा। बेटा मैं कंफ्यूज करूंगा, ध्यान रखना इस बात। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये मुझे पता है। तो ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है ना दोस्त, तो ये वाला एंगल भी 70। उसके बाद ABCD is a rhombus, that means this side will be equal to this side, तो x जो हो जाएगा that will be equal to 180 degree minus 70 degree divided by 2, which is equal to 55 degree। ठीक है, 55 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। फाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? चलो नहीं है, आगे बढ़ते। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि कई लोग घबराते हैं एनटीएससी के पास। ये एनटीएससी, माय गॉड व्हाट इज दिस, व्हाट द हुआ इज दिस। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन जो होंगे, 3 होंगे शायद, वो हम लोग वो एनटीएससी के क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी ओनली द गर्ल्स विल आंसर। So C 90 degree. C9, ओके। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मुझे A और B पता नहीं होगा तब तक मैं X की वैल्यू निकालूंगा कैसे? पता नहीं आपको कैसे 90 डिग्री। दिस इज वेरी टफ, मेरे लिए तो बहुत टफ, रियली इट्स वेरी टफ फॉर मी। So the answer is option C 90 degree. Yes, sir, 90 degree. श्योर, सोच लो। आंसर पक्का। हाँ सर पक्का। 90 degree है। अच्छा, कोई बताएगा क्यों? व्हाई द आंसर इज 90? टेल मी। तो क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B, मतलब अगर हम होल देखेंगे तो उसका सम 180 डिग्री होगा। एंड अभी मतलब ऐसा बोला है कि AX जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है और BX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। So we can say that half of angle A plus half of angle B is equal to 90 degree. Then X will be equal to 90 degree. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो, जैसा कि आपकी फ्रेंड ने बोल दिया, शी हैज ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन। पैरेललोग्राम है तो इसके जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे, मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, वो उन एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सेम एप्लीकेशन पर हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन भी किया था। तो एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हाफ ऑफ angle A plus angle B will be equal to half of 180 degree, which is equal to 90 degree. ठीक है, so angle AXB will be equal to AXB कितना हो जाएगा? 180 डिग्री minus 90 डिग्री, which is equal to 90. Okay. क्वेश्चन खत्म, आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर मिल गया, आंसर मार्क करो, इंजॉय, मार्क्स लो, आगे बढ़ो। That's it, कुछ नहीं करना। This is the level of questions that is being asked, that is being asked in the NTSC examination. तो NTSC एग्जामिनेशन से घबराने की बात नहीं है। अब बात ये आती है कि सर आपने तो
आपने तो सर एक आसान सा क्वेश्चन दे दिया, हमें एक टफ सा क्वेश्चन दो फिर हम बताएं कि एमपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। Now this question was asked in year 2014 and you guys have to answer this question fast. क्या होगा इसका आंसर बताइए। This time there is no restriction, even the boys can answer. First. Very nice. The correct answer of this question will be C plus 2. Will be C plus 2. कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को? देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंगल APB will be equal to, देखो मेरे को twice of एंगल APB निकालना है, ठीक है? एंगल APB will be equal to 180 degree minus half of एंगल A प्लस एंगल B। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। Twice of angle APB will be equal to 360 degree minus angle A plus angle B। अब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? सर 360 डिग्री। तो यहाँ पे कहना ही रहा है, और इसमें से दो एंगल्स तो मेरे को मिल गए, बाकी दोनों क्या होंगे? तो 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी नथिंग बट एंगल सी प्लस। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस वाज इंडीड अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन? अगर अब मैं आपको एक लाइन बोलूंगा ना तो आप लोग बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करूं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करूं, थोड़ा सा बोलो हाँ या ना? कंफ्यूज होना है कि नहीं? सर इसमें हाँ सर। प्लस एंगल हाँ डी सर। आंसर हो सकता है ना, क्योंकि सर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा ना। देखा देखा, बोल दिया उसने, मुझे पता था। सर ये देखो उसने क्या क्वाड्रिलेटरल बोला, को हमें मेंशन नहीं किया parallelogram कौन सा नहीं है, क्वाड्रिलेटरल। ये सुनो तो सुनो quadrilateral सुनो सुनो सुनो, नहीं किया। एक मिनट सुन लो मेरी बात। देखो उस बच्चे ने क्या बोला, आई रियली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दैट बॉय। उस बच्चे ने क्या बोला कि सर इस क्वेश्चन में आपने तो C प्लस डी निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन क्या है सर? यहाँ पे वर्ड यूज किया है एनी क्वाड, ठीक है? तो पैरेललोग्राम इज आल्सो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो। तो अगर आई एम कंसीडरिंग पैरेललोग्राम देन A plus B will also be my answer। अब मैं क्या करूं सर? Yes sir, बताइए। because angles are equal. अब मैं क्या करूं? What answer am I supposed to mark? Am I supposed to mark C plus D or am I supposed to mark A plus सर B? अगर इसको Tell me। पैरेललोग्राम हम करेंगे ना सपोज, तो सर चारों ऑप्शंस आएंगे। क्या हुआ सर? आपने क्या बोला? बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने ये बोला कि यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है एनी क्वाड्रिलेटर, ठीक है? तो पैरेललोग्राम इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब अगर मैं इसको पैरेललोग्राम मानता हूं माय डियर फ्रेंड, तो इन दैट केस A plus B इज आल्सो आंसर, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो सर इसमें एडजेसेंट सारे एंगल्स आंसर होते सही हैं, है अगर पैरेललोग्राम होगा तो। अगर पैरेललोग्राम होगा तो सारे ही सही हो सर तो ऑल जाएंगे। ऑफ द अबव लेकिन- ऑप्शन तो है नहीं, इसीलिए सर जो। हाँ सर। exactly that was the correct explanation। यहाँ पे आप पैरेललोग्राम मान सकते, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन जब आप पैरेललोग्राम मानोगे तब आपको क्या पता चलेगा कि all the options are same। That is why you cannot assume this to be a parallelogram। आपको यहाँ पे इसे नॉर्मल जनरल क्वाड्रिलेटरल ही लेके चलना। एजम्पशन के केस में ये प्रॉब्लम होती है कि जब आपको ये देखना पड़ता है, कई बार क्या होता है, आप कोई वैल्यू एज्यूम करके अगर आप कोई पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो या ज्योमेट्री में, जैसे यहाँ पे एनी क्वाड्रिलेटरल था, अगर आपने इसको पैरेललोग्राम में फिल कर दिया तो व्हाट यू फाइंड दैट ऑल द ऑप्शंस आर सेम, सो यू कैनॉट एज्यूम इट एज ए पैरेललोग्राम। अगर एनी क्वाड्रिलेटरल है तो आपको एनी क्वाड्रिलेटरल ही मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होता
तो मैं इसको पैरेललोग्राम देके चल सकता था, लेकिन मैं इसको पैरेललोग्राम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई और सारे के सारे ऑप्शन सेम नहीं है। दिस इज ए very good point that your friend has raised. I wanted to raise this and confuse you all, but your friend has already raised that point. And seriously, maybe I scold you guys, but I'm highly impressed with you. बहुत अच्छे हुआ। चलो ये क्वेश्चन। Now the turn for answer is with girls. जो लड़का खुद को लड़की मानता है वही इस क्वेश्चन का आंसर देगा, अदरवाइज गर्ल्स विल बी दैट। एंड गर्ल्स, यू डोंट हैव ऑल द टाइम, it is 51:24 in my watch. You guys have just 2 minutes for this. First, लड़कों आप लोग भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को if you want. सर हो गया। हो गया। हाँ सर। हाँ दे सकते हैं, लड़के चैट में आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चैट में बोला है, व्हाट्सएप पे नहीं बोला। अच्छा व्हाट्सएप पे कुछ और है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली, दिस क्वेश्चन हैज कम एट ए रॉन्ग प्लेस। इस क्वेश्चन की जगह यहाँ नहीं। Rudra, how you have solved this question? Have you tried? You have applied Heron's formula, or you have applied some other? Yes, formula? sir, Heron's formula. Heron's formula. सर हेरॉन्स फॉर्मूला कर दिया था। Heron's formula कर दिया। Sir, semi perimeter we will calculate and हाँ then सर, we S into will S find minus the A fine, B सी देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए Heron's formula अपन को करना यूज करेंगे। That will be the next to next chapter. But I'm just telling you how we will solve this question by the application of Heron's formula. देखो होता क्या है बेटा, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमारे पास ट्रायंगल के बारे में हमें कुछ नहीं पता। We land up in a situation where we don't have any idea about the triangle. Triangle किस टाइप का है, उसका एल्टीट्यूड क्या है, कुछ नहीं। हमारे पास सिर्फ उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स होती हैं। उस केस में हम एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं? We use the formula which is known as Heron's formula. अब ये Heron's formula क्या होता है? कौन से साइंटिस्ट थे, क्या उनका नाम था, उनकी हिस्ट्री क्या थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। ये एक ट्रायंगल है ABC, इसकी 3 साइड्स हैं A, B और C। इन्होंने ये बोला था इस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इस ट्रायंगल का एरिया विल बी इक्वल टू हाफ होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, अंडर रूट ऑफ S अंडर into रूट S S into S minus minus A A into S C into S minus B S minus C। अंडर रूट S into सर मतलब आपको हाफ लिखना पड़ेगा, वो सेमी पेरीमीटर होगा। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, हाँ सर, the square root of the perimeter of the triangle in this case, where the area of the triangle in this case, where only the sides are given, that is S into S minus A multiplied by S minus B multiplied by S minus C. अब ये S क्या है सर? S is nothing but सेमी A पेरीमीटर plus B plus C divided by 2, जिसको अपन सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा कि एक जो पैरेललोग्राम होता है, ये तो पैरेललोग्राम नहीं बन पाया, हाँ बन गया। एक जो पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल होता है। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाता है। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ए मेरे को साइड्स का लेंथ मुझे दिया हुआ है 6, 4 और 8, तो 6 plus 4 is 10, 10 plus 8 is 18, 18 divided by 2 is 9. So my triangle, my area of the triangle will be equal to, इसको अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, it will be 9 multiplied by 9 minus 6 is 3, 9 minus 4 is 5, and 9 minus 8 is 1. So this will be
3√15। अब √15 को सॉल्व करके अनिमेश मिलता अवार्ड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे 3√15 भी आंसर है, 6√15 भी आंसर है। जो लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, जैसे ही 3√15 मार्क देखेंगे, जैसे ही उनका 3√15 आया, 3√15 को मार्क कर देंगे और एक क्वेश्चन को गलत। सर डबल भी होगा ना, क्योंकि क्यों करेंगे वो बेटा? दो क्योंकि triangle यहाँ पे है ना। डबल सर करना है। क्योंकि एक ही ट्रायंगल है, इसे डबल करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे डबल करना है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं, इसलिए इसका जो एरिया होगा दैट इज 6/15। ठीक है, इस क्वेश्चन को द क्वेश्चन हैज अपीयर्ड एट ए रॉन्ग प्लेस, क्योंकि ये क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला के बाद आने वाला था, बट ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। तो बेसिकली द क्वेश्चन हैज अपीयर्ड एट ए रॉन्ग प्लेस, तो I don't. क्वेश्चन है Yes, ये NTSC का क्वेश्चन, ये NTSC का। तो हमारी बुक में वैसे भी इस क्वेश्चन को निकाल दिया है। ये NTSC का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर पूछा गया था, क्योंकि मैंने आज ही इस क्वेश्चन को पेपर से डाउनलोड किया। ये 2018 में या 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। आपकी बुक से निकाला गया होगा तो आगे हीरोन्स फार्मूला वाले चैप्टर में दिया होगा। हाँ सर, क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला वाले चैप्टर में दिया होगा। Actually, the problem with the quadrilateral chapter is, I am done with this chapter. अब आप लोग का टास्क यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चंस करो, डाउट्स आएंगे, डाउट्स पूछो, डाउट क्लास में आओ, डाउट पूछो। मैं वो डाउट फॉर्म और ये सारी चीजें आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि perhaps I have eliminated the mischievous element that was creating a problem in the class. So the chapter is over from my end. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है